सी आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हैव यू स्टडी लीनियर इक्वेशन इन अर्लियर क्लासेस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. You must have studied linear equation in your. So here is a chapter, is chapter number 3, that is known as pair of linear equations. Pair of linear equations in two variables. What is the meaning of linear word? Can you tell me? One. Yeah, degree one. Yes. Yes. Yes, Arav. So actually, I was made to do some work. So this is the challenge. Pardon? Your voice is not so clear, Arav. हेलो, देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहले मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो क्या होती थी, ज़रा ध्यान से समझना। वन वेरिएबल वाली इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होती थी, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। इज़ दैट ओके? ये पढ़ते थे आप? प्लीज़ टेल मी। Yes, sir. So now, why we need? Because the variables are nothing but conditions in the equations. Okay, so I will try to express this problem, that how this two variable came into the existence. Okay, so let us consider. Suppose if I say that Excuse me, sir. yes, So please explain. हाँ, सर I आपने अभी क्या करवाया था सर? वो आगे नेटवर्क यहाँ पे सर नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है. कोई बात नहीं बेटा, मैं शेयर कर दूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी शेयर कर दूंगा। अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद पेयर ऑफ लाइन्स. Okay, Okay, sir. I'm just giving the introduction part of it. Okay, sir. So I'm just expressing this problem like this. Suppose Ram has twice the amount in comparison of Lakshman. So I want to express this. Suppose if I say that I don't know that how much amount Ram has. So if I say that X. let Ram has X rupees Hmm. and Lakshman has Y rupees. So what will be the relation? Can I say We that can say y. Y y, is equals to 2x. y is equal to 2x? Is that okay? So this is the linear equation, but I want to write in its standard form. The standard form of linear equation in two variable is any expression, any equation of the form, any equation of the form ax plus by plus c equals to 0 represents the linear equation in two variables provided some conditions where ABC are real numbers and A and B are not both zero. A and B are not both zero. दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों जीरो हो गए तो तब तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ए कांस्टेंट. इज दैट ओके? सो आई विल would like to give you some example. Example 1. Suppose I am writing 2x minus 3y plus 5. So this is the another example. So I can write root 2x
minus root 3y plus 7. This is another example of the standard form. Is that okay? Yes, sir. Okay. Now what we are going to study here, geometrically what it represents. Geometrically, please try to understand, it represents a straight line. Geometrically, ax plus by plus c equal to 0 represents the straight line. For example, suppose if I ask you that draw the graph of 2x plus 3y is equal to 6. In your junior classes, you must be making this table x and y like this. Suppose if I put x equal to 0, then y is 2. And if I put y equal to 0, then it is 3. Then you must be drawing this graph like this. This is your x-axis, y-axis, x dash, y dash. So this is the line will go like this, and it will intersect on x-axis at the point 3, 0 and on y-axis 0, 2. Is that okay beta? Please tell me. Yes, sir. तो लेकिन अब यहाँ बात आ रही है पेयर ऑफ. सो व्हाट वी आर गोइंग टू study here in the pair of lines. So we will be considering the solution part of it. Now I'm just explaining that how we are going to find the solution. Now what is the pair of linear equation? Pair of linear equation in two variables. सिचुएशन को जरा समझना. सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. x plus y is equal to 4 and x minus y is equal to 2. एक बात आप समझिए, बिटवीन टू लाइंस क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं. एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ. पहले अगर मान लो मेरे पास दो लाइन है L1 एंड L2, तो क्या क्या हो सकता है. नंबर 1, L1 पैरेलल हो सकती है L2 के. प्लीज टेल मी, ऐसा हो सकता है. Yes, sir. नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि L1 इंटरसेक्ट L2. प्लीज टेल मी भाई. Yes, sir. आप ऐसे भी हो सकता है ना, दोनों लाइन पैरेलल हो जाए ऐसे, या ऐसे हो सकता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए. अच्छा एक बात बताइए, जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, सपोज द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइक दिस. सपोज द लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. At this point, so if I say this point is x1 comma y1, so what you will say that this point x1 y1 is a common point for both the lines. Please tell me. Yes, sir. So it must be a unique solution. Please tell me. Yes, sir. And if these lines are parallel, so what I will say that no solution, because the lines are not intersecting. Mm. No solution. And third possibility is L1 and L2 are coincident. Can you understand it? What is coincident? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए लाइन. इज दैट ओके? ये मान लो L1 है Yes, sir. और इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, ओवरलैप कर गई. इस केस में क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ये हम आपको ग्राफिकली भी आपको अभी सेटिस्फाई करा के दिखाएंगे. जो हमने पहला एग्जांपल लिया तो विल बी ड्राइंग द ग्राफ ऑफ इट. जस्ट सी, और कोशिश करना इसको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करना बेटा, ठीक है. तो जैसे हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. सो लेट अस ड्रॉ इट. ग्राफ पेपर पे आपको सॉल्यूशन भी दिख जाएंगे कि ये मैं यहाँ पर स्केल ले रहा हूँ 1
2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, then -1 -2 -3 -4. So now let us make the table. These are your x-axis and y-axis. So if I make the table for first one, when x is 0, y is 4. When y is 0, x is 4. So the first line will pass through this point. Is that okay, beta? Please tell me. Clear, beta? Yes, sir. And 0, 4, like this. Now let us draw the second one, second line. I'm making it stable. When x is 0, y is -2. When y is 0, x is 2. So it means these are the points. See, this line is intersecting or not? So it must have the unique solution. Please tell me. हाँ जी, Yes, sir. देखिए ये मेरे स्केल इक्वल नहीं है. ये पॉइंट आपको ग्राफ पेपर पे नजर आएगा. When you solve it ना, this must be something like that, 2,4 ऐसे कुछ आएगा. क्लियर है बेटा? जैसे आप चेक भी कर Yes, sir. सकते हो. अगर ये कैसे चेक करेंगे, इस पॉइंट को दोनों इक्वेशंस में डाल के देखिएगा. एक मिनट जरा ध्यान से देखिएगा. सॉरी, एक मिनट. ये पॉइंट नहीं आएगा, 2,4 नहीं आएगा. लेट मी सी इट. ये आएगा 3. एक तो देखो 3 दिख ही रहा है, 3 आएगा. 3 कोमा कितना आएगा? 1 2, 1 1 3, 2. 3,1 आएगा बेटा. देखो ना, यहाँ से हमारा स्केल ठीक बन तो रहा है. ये देखिए 3,1. प्लीज टेल मी. हाँ. चेक कर सकते हैं. Yes, sir. पहली वाली इक्वेशन में डालिए, x को 3 और y को 1, तो सेटिस्फाई कर गया. दूसरे में डालिए 3 - 1 2. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. ओके. तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन. यानी व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट यू विल हैव द यूनिक सॉल्यूशन. Another example I'm giving you. See, example 2. Suppose if I say that my lines are x plus y is equal to 2 and 2x plus 2y is equal to 6. See, if I want to draw the graph, I'm just drawing roughly x and y. X is 0, then y is 2, y is 0, this is 2. So this is the line like this. This will pass through 2, 0 and 0, 2. And another line, if I make its graph, when x is 0, y is 3. When y is 0, it is 3. So you can say that this will be the line, something like this. It will pass like this. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. So these are parallel lines. Hmm. So no solution. Parallel lines. No solution. Is that okay, beta? Please tell me. Yes, sir. Okay. तो ये देखिए, वैसे भी आप सोच सकते थे ये सिचुएशन, इसमें नो सॉल्यूशन कैसे आएगा. अगर ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज आई मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2x + 2y इज इक्वल टू 4 आएगा. लेकिन ये किसके बराबर दे रखा है? 6. सो 6. क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? दिस इज इम्पॉसिबल. तो इस वजह से नो सॉल्यूशन. समझ में आ रही बात? प्लीज टेल मी. हाँ. तो आप वो चेक भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. अब चलो एक और एग्जांपल देते हैं आपको इंटरेस्ट. मैंने लाइन लिखी x + y इज इक्वल टू 2 एंड 2x + 2y इज इक्वल टू 4. आपको दिखने में कितनी लाइन दिख रही है? 2 दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में एक ही है. ये कोइंसिडेंट लाइन है. कैसे पता पड़ा? ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो सेम सेकंड इक्वेशन आ जाएगी. प्लीज टेल मी. Yes, sir. देखो, जब आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक ही लाइन आएगी और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगी. तो कितने सॉल्यूशन आएंगे?
इस लाइन पे जितने पॉइंट्स है वो सारे इसके सॉल्यूशन हैं? प्लीज टेल मी। एंड हाउ मेनी पॉइंट्स लाइन कंटेन? Two. इन इनफाइनेटली मैनी बेटा, लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट है विच एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन ना। Sir, line continues 180 तो हाँ ठीक है। infinitely many. So you can predict from the figure also. And देखिए अगर इसका भी आप टेबल बनाएंगे तो सेम लाइन ये आएगी, वो इसके ऊपर ही ये एक ही लाइन है बेसिकली, दिस इज द सेम लाइन. सो यू कैन से दैट here infinitely many solution, many solution. I hope these three situation must be clear to you. Please tell me बेटा. हाँ जी, चलिए मैं अब आपको Yes. I'm giving you some criterias that how you can judge कि यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, इनफाइनाइट कब होंगे और नो सॉल्यूशन कब होंगे. सो आई एम गिविंग द क्राइटेरिया, जस्ट अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया. मान लो मेरे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस ऐसे दे रखी है. a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एक ये दे रखी है. दूसरा दे रखा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. अब हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एक बात समझ लेना, दो तरह के हम सॉल्यूशन पे चर्चा कर रहे हैं. तो जो सॉल्यूशन आएगा, एक तो यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होगी a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2. फिर इसके बाद आता इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन में a1 बाई a2 मस्ट बी सेम एज b1 बाई b2, सेम एज c1 बाई c2. इसके बाद आता नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया क्या होगा, a1 बाई a2 तो b1 बाई b2 के बराबर होगा, बट विल नॉट बी इक्वल टू c1 बाई c2. आई एम डिस्कसिंग दिस फैक्ट्स. अभी मैंने तीनों एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं. तो जब यूनिक या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम. इस केस में हम कहेंगे द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. And when no solution is there, we call it as inconsistent. Inconsistent. Is that okay बेटा? क्राइटेरिया समझ में आया? मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. देखिए जरा, बिगिनिंग में मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, इसको कंपेयर कीजिए. पहली वाली लाइन में a1 कितना है 1, b1 कितना है 1, c1 कितना है 4. इसमें दूसरी वाली लाइन में देखिए a2 कितना है 1, b2 कितना है -1 एंड c2 कितना है 2. तो मुझे बताइए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. प्लीज टेल मी. यस सर. तो इसलिए इसका क्या आया था, यूनिक सॉल्यूशन. इज दैट ओके? ओके. यस सर. अब इस वाले में देखिएगा जरा ध्यान से. इस वाले एग्जाम्पल में a1 आपका 1 है, b1 आपका 1 है, c1 आपका 2 है. इस वाले में, दूसरे वाले में देखेंगे a2 आपका 2 है, b2 आपका 2 है और c2 आपका 6 है. आप क्या देखेंगे यहाँ पर, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. प्लीज टेल मी, इट इज हैपनिंग और नॉट? सो यस सर. तो नो सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला देखिए हमने लास्ट में क्राइटेरिया दिया था. तो यहाँ अगर आप देखेंगे a1 आपका 1 है, b1 आपका 1 है, c1 आपका 2 है. यहाँ पर a2 आपका 2 है, b2 आपका 2 है और c2 आपका 4. अगर आप यहाँ इस केस में देखेंगे a1 बाई a2 इज सेम एज b1 बाई b2 इज सेम एज c1 बाई c2. तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन. क्लियर हुआ क्राइटेरिया? प्लीज टेल मी. यस सर. तो इट इज जस्ट बिगिनिंग दैट आई हैव डिस्कस. अब आप क्या करेंगे, प्लीज़ फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की ट्राई करेंगे. ग्राफ बनाएंगे, उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी होगी और आपको ये सारे क्राइटेरियाज लिखने होंगे कि, और ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ बनाएंगे. विल इट बी ओके बेटा? प्लीज टेल मी.
हाँ, यस सर। तो यहाँ तक रखिएगा। इसको आप ये सारे के सारे आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इनको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाऊंगा। इसके अलग अलग मेथड्स होंगे और